We have Advocate Hari Shankar Jain joining us on the broadcast to throw more light on the significance of this development. The next hearing date has been fixed. It is going to take place on the 12th of August. It's a big development. The Allahabad High Court has dismissed the plea of the Shahi Eidgah that challenged the maintainability of 18 suits filed by the Hindu side, and also argued before the court that the suits pending before the High Court are barred by Places of Worship Act 1991, Limitation Act 1963 and Specific Relief Act 1963. Let me in fact try and go across to Mr. Jain now. If you can hear me, sir, today's development is a significant one and a massive boost, as many are saying, for the Mandir side, because two things are clear now. One, that these suits are maintainable. Two, that they are not barred by the Places of Worship Act. Okay, I think we have just lost the line with Hari Shankar Jain. We'll try and go back to him to get more insight into what this really means as far as both sides are concerned in the Krishna Janmabhoomi Shahi Eidgah dispute. It's a massive development that has taken place. This order was reserved on the 6th of June, 2 months back. Today, while pronouncing the order, the challenge by the Shahi Eidgah when it comes to maintainability of the 18 suits, that has been rejected by the Allahabad High Court. What this also essentially means that these suits are not just maintainable but also not barred by the Places of Worship Act. But that's not the only act that was cited by the Shahi Eidgah. Limitation Act 1963 and Specific Relief Act 1963 was also cited. All right, let me take you through the arguments, and Adib is also with us on the broadcast. Adib, can you take us through the arguments presented by both the Eidgah, the Shahi Eidgah and Masjid Committee, and the Hindu side? Well, definitely, Swati, see, Shahi Eidgah, the Masjid side, they were saying that these 18 suits are not maintainable, for which the court has reserved it or order 2 months back. But when they were pronouncing the judgment, they said that this does not come under the Worship Act of 1991, so they are pronouncing the judgment. The court was also told about the Mathura Municipal Corporation, in which they said there is no record of the Shahi Eidgah in the document. So this is the big development for the Hindu side. They have said there is no document as so ever in the municipal corporation, and now the court has said that the next date of hearing is of 12th August, and this decision, this verdict, has paved the way for the maintainability suits, and now the court will be hearing the case, the case of Shahi Krishna Janmabhoomi case on the basis of the merit of the case. So the court will be hearing the case from the next week, which is of August 12th. Swati. Right, Adib, stay on with us. Let's break down the details. There will be implications when it comes to this significant ruling for the pending suits before the Allahabad High Court. And we are now getting some reactions. Listen in. देखिए, हम शुरू से कहते रहे हैं कि शाही ईदगाह पक्ष के लोग और सुन्नी बखवर्ड के लोग जान करके इस मुद्दे को ये मुद्दा न चले कोर्ट में। इन्होंने 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन लगाई थी, लोअर कोर्ट में भी लगाई थी और इसके बाद हाई कोर्ट में भी लगाई थी, और ये चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई ना हो, क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। इनके पास अयोध्या का एक लंबा अनुभव है इनके पास में लटकाने का, क्योंकि अयोध्या के मामले को भी बड़ा लंबा लटका के चले थे। तो हम शुरू से कहते रहे हैं कि यहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता है, ना उसका कोई प्रोविजन से अप्लाई करते हैं। हमने जितने भी एविडेंसेज हैं जो एक्ट प्रभावी नहीं है उसके लगाए थे कोर्ट में, और माननीय न्यायालय के द्वारा एक अद्भुत और अभूतपूर्व फैसला आज पारित किया गया है। और इससे मेरी ही नहीं, जितने सब लोग हैं, चाहे ब्रजभूमि के साधु संत हो, चाहे अन्य लोग हो, सब में हर्ष की लहर दौड़ रही है। और हम चाहते हैं कि आज का ये अभूतपूर्व फैसला भारतीय इतिहास में, श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इसी आधार पर ये सब केस चलेंगे, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो जब दूर नहीं है, सत्य सबके सामने आएगा, न्यायालय के द्वारा जनता के सामने आएगा, और ये केस हम जीतेंगे, क्योंकि आज इसकी शुरुआत हो गई है। बात हो रही है सर। All right, we have Manish joining us with more details. Manish, इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है मंदिर पक्ष के लिए, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो प्ली फाइल की थी मस्जिद साइड ने, उसे रिजेक्ट कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने।
देखिए, बड़ा और अहम पड़ाव हिंदू पक्ष ने पार कर लिया है, क्योंकि पोषणीयता एक ऐसा मसला था जिसका हवाला देकर मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष की दलीलों को खारिज करता आ रहा था। कोर्ट से भी अपील करता था जब हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा कि इस मामले में 7-11 रूल बनता ही नहीं है, तो ऐसे में ये जो वाद है ये कहीं स्टैंड नहीं करते। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी, मुस्लिम पक्ष की दलील को भी सुना। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ है। सर, आज एक बड़ा फैसला आया है कि जो आप दलील दे रहे थे उसे कोर्ट ने माना है और पोषणीयता से इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है, वो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। देखिए, हम बराबर से बात कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हमेशा ये बात कहता था और लोग कहते थे कि आप क्या बात कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट 19 दिसंबर को ज्ञान व्यापी के केस में बात होल्ड कर चुकी है। साथ ही साथ हमारा जो लीगल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर कोई किसी मंदिर में घुस जाए और घुस के जबरन नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाता है। उसी तरह अक्षर वही रहेगा जो पहले था, वही रहेगा जो था। और शाही ईदगाह मस्जिद में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इट्स अ केस ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट। 13.37 एकड़ जमीन भगवान कृष्ण में विराजमान करते उनमें निहित है और जिस ढंग से वहां पे गलत कब्जा किया गया है उसके लिए हमें हक है कि हम कोर्ट के सामने आके एक लीगल लड़ाई लड़े। 25 सितंबर 2020 से ये लीगल लड़ाई अनवरत चालू है। 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग हुई ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने और आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और शाही ईदगाह फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने किन आपने क्या पक्ष रखा और कोर्ट ने किन चीजों को अवॉइड करके उससे माना कि इस जो वर्शिप एक्ट है वो लागू नहीं होता? देखिए, अभी तो ऑनरेबल कोर्ट ने अपना ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है जजमेंट का। अभी जजमेंट अपलोड होगा तो उसकी डिटेल रीजनिंग में हम जाएंगे। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि इस केस को मैंने कोर्ट के सामने पेश किया था, आर्ग्यू किया था, तो हमारा आर्ग्यूमेंट यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर एसेंटेन करने की इजाजत देता है। साथ ही साथ वक्फ एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दिए हैं, रमेश गोविंद राम के केस में 1979 में और 2010 में बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ में। दोनों में होल्ड किया है कि वक्फ एक्ट नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है, जो वक्फ का नोटिफिकेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत मूल आधार है, जो बेसिस है जिसके आधार पे फैसला आया है। और जो 12 अक्टूबर 1968 का समझौता था वो एक इलीगल समझौता था, गलत समझौता था। ये सारी बातें हमने कोर्ट में अपने पक्ष रखा है और जिसपे आज माननीय न्यायालय आगे क्या लीगल प्रोसीडिंग और हो सकती है जिससे आपके केस को मजबूती होगी और क्या आप पक्ष रखेंगे कि आगे हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे सर्वे का आदेश दिया था और ये होल्ड किया था कि यहाँ पे एसआई जो एडवोकेट कमीशन सर्वे वो हो, उसके खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगा दी थी और ये कहना था उनका कि भाई ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश नहीं पारित कर सकती थी क्योंकि 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई। आज 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो गई है, तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सामने स्टे वेकेशन की मांग करेंगे और ये कहेंगे इसमें स्टे वेकेट किया जाए, एडवोकेट कमीशन को वहां सर्वे करने की इजाजत दी जाए। आज भी वहां पे बहुत सारे ऐसे सबूत है जो So that was Vishnu Shankar Jain, who calls today's development a significant one for the Hindu side, and the legal proceedings will continue from the 12th of August. That's the next date of the